बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I am Dr. Muhammad Asadullah, and today we discuss agents used as erythrocytic factors. Before starting the topic, I want to give a brief introduction which includes the evolution of diverse array of freely circulating blood cells was critical to the development of animal life. Hemoglobin packaging inside specialized cells called erythrocytes. A condition which is known as anemia, in which there is decrease in circulating hemoglobin levels, compromises health by reducing the ability of the blood to supply tissues with adequate levels of oxygen. Anemia can arise from a variety of causes that include genetic abnormalities, जैसे कि इसमें सिकल सेल ट्राइट आ जाएगा, and pernicious anemia, excessive bleeding, insufficiencies of dietary iron or the vitamin B12, or losses of red blood cells by invading pathogens like malaria. Blood consists of red blood cells, white blood cells and platelets and plasma. प्लाज्मा में आपको ये इन विच आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स इसमें सस्पेंडेड आपको मिलेंगे इसके अंदर. देर इज़ एन एनॉर्मस टर्नओवर ऑफ सेल्स. आर बी सी अप्रॉक्सीमेट लाइफ इसकी 120 डेज है, प्लेटलेट्स अराउंड 7 डेज, जबकि ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो 7 आवर्स हैं. सो द प्रोडक्शन ऑफ एज मैनी एज न्यू माइलॉइड सेल्स, all blood cells except lymphocytes per day in the normal healthy state obviously requires to be tightly regulated according to the needs of the body. जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली रफ एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स जो है वो 10⁻13 काफ़ी मैसिव इसकी फिगर है, ये पर डे हम इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं. एम्ब्रियोलॉजिकली जब हम इसमें देखते हैं, ब्लड आइलैंड्स आर फॉर्म इन द योक सेल इन द 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन. ये 3rd वीक से अब स्टार्ट हो जाता है एंड प्रोड्यूस प्रिमिटिव ब्लड सेल्स विच माइग्रेट टू द लिवर एंड स्प्लीन. वहाँ से निकल के ये फिर लिवर और स्प्लीन की तरफ चले जाते हैं. दीज ऑर्गन्स आर द चीफ साइट्स ऑफ हेमोपोइसिस. लिवर और स्प्लीन आर द चीफ साइट्स ऑफ हेमोपोइसिस फ्रॉम 6 वीक्स टू 7 मंथ्स. ये 6 हफ्ते से लेकर 7 मंथ्स तक रहते हैं. when the bone marrow becomes the main source of blood cells, जबकि इसके अंदर ये bone marrow की main source है. However, in childhood and adult life, the bone marrow is the only source of blood cell in a normal person. At birth, hemopoiesis is present in the marrow of nearly every bone. As the child grows, the active red marrow, जो active red marrow, is gradually replaced by fat, which is known as yellow marrow, so that hemopoiesis in the adult becomes confined to the central skeleton. ये central skeleton तक ये confined रहती है. Central skeleton and the proximal ends कहलाते हैं, which are known as trabecular area of the long bones. Only if the demand for red blood cell increases and persists to the area of red bone marrow extended. Pathological processes interfere the normal hemopoiesis may result in the resumption of hemopoietic activity and in liver and spleen, which is referred to as extramedullary hemopoiesis. All blood cells are derived from pluripotent stem cells. All cells are derived from pluripotent stem cells. These stem cells are supported by stromal cells, which also influence hemopoiesis. Now this is the hematopoietic factors. ये आप इसमें ये आप देख रहे हैं इसके अंदर हेमेटोपोइटिक फैक्टर्स. दीज आर द हेमेटो फैक्टर. इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एरिथ्रोसाइट फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, विच इंक्लूड विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड, फोलेट, आयरन. ये हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. and erythropoiesis stimulating agents. प्लेटलेट फैक्टर्स इसका एक अलग लेक्चर होगा इसका, एंड ग्रैन्युलोसाइट फैक्टर सेकंड लेक्चर होगा इंशाल्लाह. हम उसके अंदर ये 2 ड्रग्स देखेंगे इसके अंदर.
ये भी मैं आपको बता रहा था कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, अभी हम इस जेनेसिस के चार्ट को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स. स्टेम सेल हैज टू प्रॉपर्टीज. दिस इज सेल्फ रिन्यूअल, ये सेल्फ रिन्यूअल है दिस स्टेम सेल. दीज आर द सेल्फ रिन्यूअल स्टेम सेल, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स. नंबर वन प्रॉपर्टी इज सेल्फ रिन्यूअल, means production of more stem cells. Second property, proliferation and differentiation into progenitor cells committed to one specific cell line. Like ये स्टेम सेल आप देख रहे हैं, एक मेन स्टेम सेल है. जब हम इसका डेस्टिनेशन देख रहे हैं, इसका फेट देख रहे हैं, तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट जस्ट काउंट करते हैं. दिस इज एरिथ्रोसाइट, ये आपको नजर आ रहा है एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल. दिस इज द प्लेटिलेट, एजिनोफिल, monocyte, basophil, neutrophil, beta lymphocytes and B lymphocytes and T lymphocytes. Single hematopoietic stem cell और इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अभी मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल की टू प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं. इट इज़ सेल्फ रिन्यूअल, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ मोर स्टेम सेल्स एंड प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन इनटू प्रोजेनिटल सेल्स कमिटेड टू वन स्पेसिफिक लाइन. तो एक स्टेम सेल जो है, वन सिंगल स्टेम सेल, ये सेल्फ रिप्लिकेटिव है, ये सेल्फ जनरेट करेगा. एंड स्टेम सेल इट बिकम्स एरिथ्रोसाइट. So this is process known, this transition is known as differentiation. By definition इसको हम differentiation कहते हैं. एक specific cell line है जो produce कर रहा है, इसको हम differentiation कहते हैं. Differentiation of hematopoietic stem cells is regulated by a set of secreted glycoproteins which are known as cytokines. ये जो production हो रही है single stem cell से, for example ये example हम देख रहे हैं कि stem cell है, ये erythrocyte बन गया है, ये erythrocyte बन गया है. So this is known as the differentiation, and this is regulated by a set of glycoproteins which are known as cytokines, stem cell factors and several colony stimulating factors collaborating with interleukin 1, 3 and 6. Interleukin 1, 3 and 6 मैं मेंशन कर देता हूँ आपको यहाँ पर. दिस interleukin 1, interleukin 3 and interleukin 6. ये आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसको रिपीट हम कर देते हैं कि स्टेम सेल फैक्टर एंड सेवरल कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कोलैबोरेट विद इंटरल्यूकिन 1, 3 and 6 टू स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो एंड इंड्यूस देयर डिफरेंशिएशन इनटू वन ऑफ द सेवरल माइलॉइड सेल टाइप्स. जो मैंने भी आपको बताया था कि ये सिंगल सेल है और इसका फेट जो है ये 8 में ये कन्वर्ट हो गया. जैसे कि एरिथ्रोसाइट है, प्लेटिलेट्स हैं, एजिनोफिल है, monocyte, basophil, neutrophil, B lymphocyte and the T lymphocyte. ये mechanism, this is known as the mechanism of differentiation. Specific cell lineage ये produce कर देता है और continuously करता रहता है. Continuous process है. It is due to cytokine, glycoprotein cytokines की वजह से. Erythropoietin and thrombopoietin, ये आप इसमें देखें, ये आपको ये रेड से नज़र आ रहा है EPO, एरिथ्रोपोइटिन, ग्रीन से आपको नज़र आ रहा है ये thrombopoietin. Erythropoietin and thrombopoietin then directs myeloid progenitor cells to eventually differentiate into erythrocyte और platelets respectively. ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये एक इसमें एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो गया और दूसरा ये प्लेटलेट में कन्वर्ट हो गया इसके अंदर. दिस फ्लो चार्ट जो हम देख रहे हैं नीचे डायग्राम, इट इंडिकेट्स द pass by which hematopoietic stem cells differentiate to produce many of more quantitatively prominent red and whites. क्वांटिटी के हिसाब से ये प्रोडक्शन इसके अंदर हो रही है. एंड दीज डाउन बार एरोज, ये एरो जो हम देख रहे हैं, ये डाउन बार एरो, ये डाउन बार एरो हम देख रहे हैं, ये दीज आर द डाउन बार एरोज. दीज समराइजेस द मल्टी स्टेज ट्रांजिशन. इट मीन्स कि ये स्टेम सेल है और स्टेम सेल के बाद पहले स्टेज के अंदर हमने देखा कि इंटरल्यूकिन 1 इन्वॉल्व हो गया, इंटरल्यूकिन 3 एंड इंटरल्यूकिन 6. देन कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल प्रोड्यूस हो गया. कॉमन माइलॉइड
माइलेट प्रोजेनेटर सेल, ये एक आरबीसी की लाइनेज में चला गया है, एक आपका प्लेटलेट के लिए चला गया है, और दूसरा गैरेनोसाइड मैक्रोफेज, ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये इन्होंने इजोनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल प्रोड्यूस कर दिए हैं अलॉन्ग विद न्यूट्रोफिल। तो ये एक अलग लाइनेज इसके अंदर आ गई है इसके अंदर। एंड these show the multi-stage transition. These arrows, the down bar arrows, shows the multi-stage transition. In this diagram, इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करनी है, इसके बैटरी डायग्राम, जिसमें कॉजेस तो अभी हमने इसमें हेमोलाइटिक एनीमिया की लिख दी है। ये शेप इसमें ज़रा आपको मैं दिखाना चाह रहा था, दिस इज़ द बाइकॉन्केव, ये बीच में से आपको डिप्रेस नज़र आ रहा है आरबीसी, तो अनयूजुअल शेप है इसका और सेल्स के मुकाबले में। इट इज़ बाइकॉन्केव डिस्क, ये डम्बेल शेप होता है, बीच में से ये डिप्रेस आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है। इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिफ्लेक्ट देयर हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो उसको मेंटेन करना होता है, इसका एक्सचेंज को, तो इसकी बाइकॉन्केव डिस्क के अंदर बीच में से डिप्रेस होता है। आरबीसी इंटीरियर हैव मैसिव अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है आरबीसी के इंटीरियर के अंदर भी है मैसिव अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इज अचीव इन पार्ट बाय डिस्पेंसिंग विद इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स नॉर्मली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में आमतौर पर हमें न्यूक्लियस मिल जाएगा, लाइसोसोम्स मिल जाएंगे, गल्गा, एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन वो आरबीसी में नहीं है इसके अंदर। कंसिक्वेंटली मैच्योर इन्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस, लेकिन इन चीज़ों के ना होने की वजह से ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। आरबीसी हैव एन एक्सटेंसिव साइटोस्केलेटन नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग देयर बाइकॉन्केव कन्फिगरेशन। इसके बाइकॉन्केव एक्सटेंसिव इसका साइटोस्केलेटन नेटवर्क है, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं भी आपको डिस्प्ले कर दूंगा इसके अंदर। दिस बाइकॉन्केव इज अनयूजुअल, दिस बाइकॉन, ये डिप्रेस आपको नजर आ रहा है बीच में से, ये बाइकॉन्केव आपको, एक बाइकॉन्केविटी आपको नजर आ रही है दो तरफ से, ये यूनी, ये दिस इज दैट्स व्हाई कॉल इट बाइकॉन्केव, दोनों तरफ से अप एंड डाउन जैसे भी आप इसको ले लें। दिस अनयूजुअल बाइकॉन्केव शेप इंक्रीजेज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, ये इसमें बिटवीन आरबीसी एंड टिश्यूज, ये इन टू वेज, इसमें दो तरीके से ये इन्वॉल्व हो जाता है। डिस्क लाइक कन्फिगरेशन possesses a much higher ratio of surface to volume। ये बाइकॉन्केव डिस्क जो हम देख रहे हैं बीच में से आपको डिप्रेस नजर आ रही है, इसका जो पहला पर्पस है, इट रिफ्लेक्ट्स द रेशो ऑफ सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम, सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम। देन मोर स्फेरिकल शेप, अगर स्फेरिकल होता तो सरफेस एरिया वॉल्यूम इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता इसके अंदर। एंड पॉइंट नंबर टू, इसमें दिस बाइकॉन्केव शेप इट एनेबल्स आरबीसी to fold over and squeeze through capillaries whose diameter are smaller than that of erythrocyte itself। means जो जिस उसको कैपिलरी के उसमें इन्वेट करना है, अंदर जाना है, उसका साइज इसके मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है, कम होता है, आरबीसी का साइज बड़ा होता है। तो आरबीसी इस बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से ये फोल्ड कर लेता है और उसको अंदर चला जाता है, उसको स्क्वीज कर लेता है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर देता है। मैकेनिज्म नोन एज डायबिटीज, ये डायबिटीज का मैकेनिज्म है, ये फिर में आपने इसको देख लिया होगा। बोथ फैक्टर्स, वाई वी नीड दिस, ये दो फैक्टर हमें क्यों ज़रूरी है, मैंने बताया कि सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम, एंड तीसरा फोल्डिंग ओवर एंड स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज, ये दो मैकेनिज्म हमने इसके लिए लिए। हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है इसकी, बिकॉज बोथ दीज फैक्टर डिक्रीजेज द डिस्टेंस गैस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कम टू द पॉइंट जो हम इसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं, वाई शेप बिकम्स बाइकॉन्केव डिस्क, both factors decreases the distance gas molecule must diffuse to and from the rapidly moving erythrocyte। इसमें जो गैसेस की मूवमेंट हो रही है वो अप टू 2 मिलीमीटर पर सेकेंड के, विच इज़ वेरी फास्ट, अच्छी खासी इसकी तरह स्पीडी है। तो दिस बाइका के बीच में से ये डिप्रेस होता है, बीच में डिप्रेस होने की वजह से मैंने भी आपको इसकी दो इम्पॉर्टेंट बताए कि इसमें हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं बाइकॉन्केव डिस्क में, सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम, एंड तीसरा फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग ताकि जो जिस कैपिलरी में इसको पेनिट्रेट करना होता है उसका साइज
छोटा होता है और आर्टरी का साइज ज़्यादा है, विच मैकेनिज्म विच नोन एज डायबिटीज़। तो वाई वी नीड, क्योंकि अगर ये फोल्ड नहीं करेगा तो गैसेस के जो एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, उसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 2 मिलीमीटर पर सेकंड है, तो अदरवाइज ये बर्स्ट हो जाता। अगर ये इसके अंदर मैकेनिज्म बैक कॉन्केव डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती या शेप नहीं होता तो ये खराब हो जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर कॉजेज तो हीमोलाइटिक एनीमिया के इसका डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। अब इसमें आप देखें कि म्यूटेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया में। मेम्ब्रेन के पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया इसके अंदर आ सकता है। एंजाइमोपैथीज इसमें हीमोलाइसिस में इन्वॉल्व हो सकती हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इसके अंदर आ सकती हैं। प्लाज्मोडिया इसकी पैथोजेनेसिस में आ सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया में। एंड एक्सटर्नल कॉजेज में, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हाइपर स्प्लेनिज्म, ओवर एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, वेरियस एंटीबॉडीज इसके अंदर आ जाती हैं। ऑटोइम्यून डिजीज इस तरह शुरू हो जाते हैं। हीमोलाइसिन, बैक्टीरियल हीमोलाइसिन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं स्नेक में। सो ओवरऑल इस पिक्चर में अभी आप लोगों के लिए जो मुझे जो बताना था वो इसकी बाइकॉन्केव शेप आपसे डिस्कस करनी थी। वाई बिकम बाइकॉन्केव, आपको तब क्लियर हो जाना चाहिए कि जो दोनों तरफ से ये डिप्रेस है इस बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम। एंड नंबर 2 is the folding over and squeeze through capillaries whose diameter is smaller than aziosite itself. Why we need these 2 points? ताकि up to 2 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसमें एक्सचेंज हो सके गैसेस का, जो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर ये कवर कर सके इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड आप देख रहे हैं इसके अंदर, दिस इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल आपने अभी तक सबसे ये सुना होगा कि लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, हाइड्रोफिलिक हेड और टेल आपको इसके नज़र आ रही है। इसका जो मेन डिफरेंस है दूसरे सेल्स में और इसके अंदर, इसमें जो स्पेसिफिक इसमें आपको कुछ प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। ये प्रोटीन इसके अंदर अभी मैं आपको बता देता हूँ। अर्ली एनालिसिस, हम इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल के जो प्रोटीन आ रहे हैं, एक SDS कैपिटल SDS एंड PAG, SDS एंड पेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन RBC रिवील्ड। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स को, ये जो मेजर प्रोटीन्स हैं, इसको एक मैकेनिज्म होता है विच इज नोन एज SDS पेज। SDS पेज इसको मेजर प्रोटीन को ये रिवील कर देता है। दीज प्रोटीन्स वर इनिशियली असाइंड न्यूमेरिक। आप इसमें कुछ नंबर देख रहे हैं इसके अंदर, ये आप कुछ नंबर, स्पेक्ट्रिन आपको एक प्रोटीन नज़र आ रहा है। स्पेक्ट्रिन को हमने एक को 1 कर दिया है, इसको 2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, डायग्राम इसकी हम देख रहे हैं कि ये कुछ हमें कुछ बैंड्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरह हम स्केलेटल मसल में डेफिनेटली आप इसमें एक्सपोज हुए होंगे कि स्केलेटल मसल को जब हम देख रहे थे इसमें कुछ बैंड्स नज़र आ रहे थे, A बैंड, I बैंड, M बैंड्स, ये उसी तरह की कुछ हमें अपीयरेंस नज़र आ रही है, लेकिन बस टोटली डिफरेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट है और वो बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म से एक्सप्लोर हुआ हुआ है। इसमें जो प्रोटीन्स हैं, जिस तरह ये स्पेक्ट्रिन आपको नज़र आ रहा है, एनकायरिन, उसके आइसोफॉर्म्स आपको नज़र आ रहा है, एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन नज़र आ रहा है। ये एक मैकेनिज्म इसमें हमने लिया हुआ है स्ट्रेनिंग का, SDS पेज मैकेनिज्म इसके अंदर लिया हुआ है। अच्छा, ये इसमें जो न्यूमेरिक नंबर नज़र आ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि दीज प्रोटीन्स वर इनिशियली असाइंड न्यूमेरिक डेजिग्नेटर्स बेस्ड ऑन देयर माइग्रेशन ऑन द SDS पेज। ये इसकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। दिस पॉलीपेप्टाइड विद हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास मीन्स जिसका साइज बड़ा होगा, आसान में अगर वजन ज़्यादा होगा तो उसको चलने में या उसको मूव करने में या एक जगह से दूसरे के जाने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो सेम मैकेनिज्म, सिंपल फार्मूला कि सो दिस पॉलीपेप्टाइड विद हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास विच माइग्रेट स्लोएस्ट was designated band 1 प्रोटीन was designated। इसका मतलब है इसका ये मास सबसे ज़्यादा है और इसको मूव करने में काफ़ी दिक्कत रहती है, काफ़ी स्लो ये माइग्रेट कर रहा था। तो वी कॉल इट, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन को हमने जो 1 कर दिया है, 1 and 2 कर दिया है, इट मीन इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा था और इसको मूव करने में, एक जगह से जो केमिकल रिएक्शन कर रहा था उसको मॉलिक्यूल को मूव करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसके अंदर। सो इसमें कुछ सर्टेन प्रोटीन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं RBC के, ये जो प्रोटीन है इसमें कुछ ग्लाइकोसाइलेटेड हैं। दीज प्रोटीन्स, ग्लोबिन भी नज़र आ रहा है, G3PD भी, एक्टिन भी इसके अंदर आपको प्रोटीन नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये सारे प्रोटीन आपको नज़र आ रहे हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हैं। सेवरल प्रोटीन स्पैन दी
membrane bilayer, which is known integral membrane proteins, while other associated with its surface generally via protein-protein interaction. SDS पेज मैंने अभी आपको बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ. SDS stands for sodium dodecyl sulfate. S sodium, D dodecyl, S sulfate. एंड पेज जो पेज होता है PAG stands for, इसका एब्रीविएशन है polyacrylamide gel electrophoresis. P for poly, A for acrylamide, G for gel and E for electrophoresis. हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है? जैसे मैंने बताया था, टू डिटेक्ट दी मॉलिक्यूलर वेट नंबर 1, एंड सेकेंडली हमें इसमें ये देखना होता है कि इसमें एक या उससे ज़्यादा अगर कुछ सब यूनिट है तो हम उसको डिटेक्ट कर लें इसके अंदर. SDS जो है ये सोडियम डोडेसाइल सल्फेट इस एनायनिक, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज एक आपको मिलता है इसके अंदर. प्रोटीन मॉलिक्यूल अनफोल्ड हो जाते हैं, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है अनफोल्ड कर दिया आपने और SDS की कोटिंग इसके अंदर आ गई. प्रोटीन्स हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. प्रोटीन में ज़्यादातर हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको नज़र आते हैं जिसको विच इज़ रिमूव बाय बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से हम इसको रिमूव कर देते हैं. दिस SDS सेपरेट्स प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और मॉलिक्यूलर वेट. जो मैं भी आपको शुरू में बताया कि ये जो बायकॉन्केव डिस्क है, मैं असल में इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि बायकॉन्केव डिस्क क्यों हो रही थी वो अभी आपको पता चल जाएगा. तो this SDS, this separates protein on the basis of their molecular size. Now we can say that ये diagram हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं आई एम क्लियरिंग कि दिस इज द RBC मेम्ब्रेन, ह्यूमन मेम्ब्रेन. आपको उसकी सेल मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपको नज़र आ रहे हैं. नेमली उसमें स्पेक्ट्रिन है, एनकायरिन है, एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन्स है और एक्टिन आपको नज़र आ रहा है, G3PD नज़र आ रहा है और ग्लोबिन नज़र आ रहा है. इसमें हमें कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.6. ये नंबर हमने किस तरह दे दिए? दिस मूवमेंट की वजह से. मूवमेंट, विच टाइप ऑफ मूवमेंट? जो केमिकल रिएक्शन हमने रन करा उसमें अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में उसको टाइम लग रहा है. तो जो जितना स्लोएस्ट होगा उसका नंबर उतना बड़ा हो जाएगा. सो इस वजह से हम क्लेम कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम को हमने 1 कह दिया. दिस इज द स्लोएस्ट मूवमेंट इसके अंदर आ रही है. सो हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया है RBC की मेम्ब्रेन को वाया SDS पेज मैकेनिज्म. दिस बायकॉन्केव डिस्क, ये जो हमने बताया था अभी कि ये सरफेस वॉल्यूम और उसके हिसाब से जो अभी लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर रहे थे, डायबिटीज का एंड सरफेस सिग्नल अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल और जो गैस के एक्सचेंज आ रही है. तो दिस बायकॉन्केविटी जो बीच में से जो डिप्रेस नज़र आती है, नाउ वी कैन से दैट हम इसको कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन का बीच में कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो बीच में डिप्रेस हो जाता है और इस डिप्रेस होने की वजह से गैस का एक्सचेंज है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. और जो छोटी कैपिलरीज हैं, जो RBC का साइज़ बड़ा है और कैपिलरीज जो छोटी हैं, वहाँ से ये आराम से गुजर जाता है इसके अंदर से. इसके अंदर देख रहे हैं कि ये स्पेक्ट्रिन, ये आपको स्पेक्ट्रिन नज़र आ रहा है, ये एनकायरिन नज़र आ रहा है, ये इसका इंटरेक्शन नज़र आ रहा है. दिस इज़ द लिपिड बाइलेयर हम इसके अंदर देख रहे हैं. और ये देखिए दोबारा इसमें स्पेक्ट्रिन का एनकायरिन के साथ इंटरेक्शन है नंबर 1 और स्पेक्ट्रिन का एक्टिन के साथ इंटरेक्शन आपको नज़र आ रहा है. RBC मेम्ब्रेन के अंदर आप ये इंटरेक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये RBC की प्रोटीन है, इंटरली हम देख रहे हैं. ज़्यादा हमें इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये इसका जो बायकॉन्केव शेप है उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे थे कि इसकी हमें क्यों ज़रूरत है और ये हमें क्यों चाहिए होता है. बायकॉन्केव डिस्क ये बीच में से डिप्रेस होता है. अब हम कह सकते हैं कि RBC की मेम्ब्रेन जो बीच में से डिप्रेस है वो स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन के वेट की वजह से है. ये बीच में से डिप्रेस हो जाता है जिसमें सरफेस का और वॉल्यूम का जो रेशो है वो इसके अंदर चेंज हो जाता है और इसके डिप्रेस होने की वजह से इसमें फोल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये तंग जगह से साइज़ बड़ा होने की वजह से बावजूद ये आसानी से गुजर जाता है. और ये हमें क्यों चाहिए होता है, मैंने इसका आपको स्ट्रैटेजी बताई थी. इसकी जो स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस है, इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है कॉमनली, बार बार हम इसको कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की उसकी स्पीड जो होती है वो 2 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसके अंदर एक्सचेंज हो रहा था, विच इज़ वेरी फास्ट. नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस डिस्कस करना है. हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस, इसमें आपको जो पिक्चर में नज़र आ रहा है हम देख रहे हैं
कि ट्रांसपेरेंट एक प्रोटीन है, अभी हम इसको आयरन पे जब जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट अटैचेस टू दी सरफेस ऑफ रिसेप्टर और डेवलपिंग रेड ब्लड सेल। ये जो डेवलपिंग रेड ब्लड सेल है उसमें ये आपको ट्रांसपेरेंट आपको अटैच होता हुआ नजर आएगा। आयरन इज रिलीज्ड, दिस आयरन, आयरन आप हम इसको ट्रैक कर लेते हैं आयरन को, ये आयरन आप देख रहे हैं, आयरन इज रिलीज्ड, दिस आयरन इज रिलीज एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाएगा डेवलपिंग रेड सेल्स के अंदर, वेयर इट कंबाइंस विद प्रोटोपोरफायरिन, ये प्रोटोपोरफायरिन के साथ मिल गया है, ये प्रोटोपोरफायरिन के साथ मिल गया है टू फॉर्म हीम, इसने ये हीम बना दिया, इसने हीम का ये मॉलिक्यूल बना दिया, हीमोग्लोबिन बना दिया। प्रोटोपोरफायरिन इटसेल्फ, this protoporphyrin itself is produced or manufactured from glycine, ये ग्लाइसिन से मिलकर बना है, डायग्राम में आप देख भी रहे हैं, प्लस सक्सिनाइलकोलिन, सक्सिनाइलकोलिन और ग्लाइसिन की वजह से प्रोटोपोरफायरिन ये बन गया है, इसने हीम, और हीम जो है दिस हीम कंबाइन विद अल्फा एंड बीटा चेन्स, हीम जो है ये अल्फा और बीटा चेन्स के साथ मिल गया है, ये अल्फा और बीटा चेन्स ये राइबोसोम के ऊपर बनती है, फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स, दीज अल्फा एंड बीटा चेन्स फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स टू मेक हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन आपको इसके अंदर मैच्योर नजर आ रहा है। तो ट्रांसफेरिन अटैचेस टू द सरफेस रिसेप्टर ऑफ डेवलपिंग रेड सेल, दिस ट्रांसफेरिन आयरन इज रिलीज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट कंबाइंस विद प्रोटोपोरफायरिन टू फॉर्म हीम, इसने हीम को बना दिया इसके अंदर। Protoporphyrin itself manufactured from glycine, this glycine and succinyl-CoA. Heme combined with alpha and beta chains, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आने के बाद अल्फा बीटा चेन के साथ मिल जाती हैं, ये अल्फा और बीटा चेन्स ये राइबोसोम्स के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं एंड टू मेक हीमोग्लोबिन, इन्होंने हीमोग्लोबिन बना दी है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हम इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, इसमें आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक ये आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है, ये पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है, और एक आपको ये ब्लू कलर, ये वायलेट कलर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये दो चेंज नज़र आ रही है इसके अंदर ब्लू एंड वाइट। अब देखें इसमें जो पिंक है वो दो चेंज मैं इसको ट्रैक करता हूँ यहाँ से, दिस इज ट्रैक, ये एक अल्फ़ा आपको नज़र आ रही है, एक अल्फ़ा आपको इसके अंदर नज़र आ रही है चेन, और दूसरी पिंक जो है वो आपको अल्फ़ा 2 आपको चेन नज़र आ रही है इसका, दिस इज़ अल्फ़ा 2 चेन, एक अल्फ़ा 1 चेन नज़र आ रही है आपको, और एक अल्फ़ा 2 चेन इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। सेकेंडली इसके अंदर हम देख रहे हैं जो ब्लू कलर की और जो वायलेट कलर की है, ये आपको बीटा 1 चेन आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, दिस इज़ द बीटा 1 चेन, ओके। और उसके बाद फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आपको ये बीटा 2 चेन आपको ब्लू या वायलेट कलर के अंदर इसमें नज़र आ रही है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो स्लाइड में आपको बताना है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, इसमें आप देखें कि जो अल्फ़ा 1 है, दिस इज़ अल्फ़ा 1, ये येलो कलर का आपको एक कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, दिस इज द अल्फ़ा 1 इज़ इन कॉन्टैक्ट विद बीटा 2, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा 1 इज़ इन कॉन्टैक्ट विद बीटा 2, ये दो किस्म के कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको, अल्फ़ा 1 चेन इज़ इन कॉन्टैक्ट विद बीटा 2 चेन। दूसरी तरफ हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ये अल्फ़ा 1 चेन, ये दोबारा ये अल्फ़ा 1 चेन, ये आपको एक कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, अल्फ़ा 1 चेन जो है इज़ इन कॉन्टैक्ट विद बीटा 1 चेन, दिस अल्फ़ा 1 चेन इज़ इन कॉन्टैक्ट विद बीटा चेन, और ये आपको आयरन आपको नज़र आ रहा है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, ये आयरन विद ऑक्सीजन। नीचे इसके राइट बॉटम पे हम देख रहे हैं इसके अंदर कि ये आपको M नज़र आ रहा है, M से मिथाइल, M स्टैंड्स फॉर मिथाइल, P stands for प्रोपेनिक एसिड एंड दिस इज V, दिस इज विनाइल। इसको जब हम 4 हाफ्स के अंदर देखते हैं, इसके अंदर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस डायग्राम को, इसको 4 हाफ्स के अंदर देख रहे हैं तो देखें यहाँ पर ये M एंड P आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है एक तरफ, और फिर इसके जस्ट M और ये P आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है। जब हम इसके अपोजिट तरफ उसको देखते हैं तो यहाँ पर आपको M एंड V, यहाँ पर M एंड V आपको नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया था M स्टैंड फॉर मिथाइल, P फॉर प्रोपेनिक एसिड एंड V फॉर विनाइल आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, देखिए पूरा क्लासिकली बहुत ही बैलेंस्ड किस्म की इसमें जो मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रही है, दिस इज मॉलिक्यूल देखें बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल इट्स ऑल बैलेंस।
बीच में ही आपको आयरन नज़र आ रहा है, दिस इज द आयरन, दिस इज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये बीच में आपको आयरन नज़र आ रहा है। बहुत ही बैलेंस इसमें इक्वेशन हुई हुई है 2+। तो इस स्लाइड में आपको हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में दो चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है, तो अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2, अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2। अब जिस तरह हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हमने पीछे प्रोड्यूस करा था, तो आपको उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम 1 1 लिख रहे हैं या 2 2 लिख रहे हैं या 1 2 लिख रहे हैं या 2 3 लिख रहे हैं, वट एवर में भी। तो ये कॉन्टैक्ट में किस तरह आते हैं, येलो कलर का आप एक पेज टाइप का आपको नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल आपको, तो ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट है इसके अंदर, वी हैव 2 कॉन्टैक्ट। एंड उसके बाद ये आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको ये नज़र आ रहा है 2 3 BPG, 2 3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। ये भी मैं इसका कॉन्सेप्ट अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि इसका काम क्या है इसके अंदर। तो इस स्लाइड में आपको जो चीज़ें देखनी थी, इसमें कॉन्टैक्ट देखने हैं आपको, नंबर 1 अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 कॉन्टैक्ट, एंड दूसरा इसमें पॉइंट था अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 कॉन्टैक्ट आपको देखना है। ये आयरन और ऑक्सीजन का आपको नज़र आ रहा है, ये भी आप काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे फिजियो में भी और चीज़ों के अंदर भी। एंड दिस इज द बैलेंस मॉलिक्यूल, ये आपको बैलेंस मॉलिक्यूल, क्लासिकल बैलेंस मॉलिक्यूल। ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल, वह बहुत अच्छी स्लाइड है, एक्सेलेंट स्लाइड, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बॉडी में हो क्या रहा है और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी नीड दिस। ये सब आपको इसलिए बताना पड़ रहा है कि जिस तरह एम्ब्रियोलॉजिकली हमने देखा था कि जैसे ही कोई लेडी कंसीव करती हैं, कोई लेडी कंसीव करती हैं, तो सबसे पहले हम जो ड्रग उनको एडवाइस कर देते हैं कि आप जाके जी अपना हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करें और फॉलिक एसिड आप साथ लें। तो हीमोग्लोबिन का लेवल जो हम मेंटेन करना चाह रहे हैं या आयरन के लेवल जो अप टू द मार्क रखना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे ये सारे सीक्वेंसेस हैं जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये कि आप देखें कि जैसे ही दुनिया में आने से पहले एंटीनेटल केयर के दौरान फ्रॉम डे 1 टू टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे जोर होता है अप द होल लाइफ कि अपना हीमोग्लोबिन और आयरन के लेवल्स आप अपने मेंटेन रखें, ताकि आपको आप हेल्दी रहें और आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी नॉर्मल रहे, प्रॉब्लम ना आए। अब इस स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि बीइंग अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी और अभी मेडिकल स्टूडेंट भी हो गए हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल काफ़ी दिन से आपको देखे होंगे, ये आपको इन्वर्टेड वी कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये इन्वर्टेड वी नज़र आ रहा है। अब हम हीम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नाउ वी अंडरस्टैंड हीम, हीम आया कहाँ से। 2 स्लाइड पीछे हमने इसको डिस्कस कर लिया कि हीम कहाँ से आया हुआ है, इट्स नथिंग न्यू। अब हम ये इंटरैक्शन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 1 इज इन कॉन्टैक्ट विद बीटा 1, अल्फ़ा 1 बीटा 1 के। अब हम इस स्लाइड को अंडरस्टैंड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। नीचे आप देख रहे हैं इसी के बॉटम में कि ये बीटा 2 इज इन कॉन्टैक्ट विद अल्फ़ा 2, ये हम पीछे देख चुके हैं कि किस तरह एक दूसरे कॉन्टैक्ट में। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपको, उसके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपको इसके साथ नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल उसके अंदर। ऑन द राइट साइड दिस इज डी ऑक्सीजनेटेड, इस पिक्चर में और इस पिक्चर में आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है। एक तो ऑक्सीजन आपको यहाँ नजर, डेफिनेटली नाम इंडिकेट कर रहा है, डी मीन्स रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन आपने यहाँ से रिमूव कर दी, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सेकंड एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो दिस इज एक चीज़ लिखी हुई है 2 3 BPG, 2 3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट, इस कितना नज़र आ रहा है इसमें 2 3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट, ये हमें एक ब्रिज नज़र आ रहा है। दिस 2 3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट इज द ब्रिजिंग बिटवीन बीटा 1, ये बीटा 1 एंड बीटा 2 चीज़, ये बीटा 1 और बीटा 2 के बीच में हमें ये 2 3 BPG एक चीज़ नज़र आ रही है इसके अंदर, 2 3 BPG। नाउ वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं इस लेवल के ऊपर कि ऑक्सीजनेटेड जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसमें ये इस लैक 2 3 BPG जो डीऑक्सीजनेटेड आपका मॉलिक्यूल है विच कंटेन्स 2 3 BPG। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, वी कॉल इट ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज स्टेबलाइज बाय, हमें इसका अपोजिट चाहिए होता है, अल्फा और बीटा चेन्स के बॉन्ड्स चाहिए होते हैं। वी नीड अल्फा, मैंने पिछले भी स्लाइड में बताया था कि इसमें बॉन्डिंग जो है हमें अल्फा और बीटा की चाहिए होती है। रादर देन अगर अल्फा अल्फा हो जाते तो ये अनस्टेबल आता है, ये बाइंड नहीं कर पाता, या बीटा बीटा कर लेते तो ये हो नहीं पाता इसके अंदर। अल्फा अल्फा और बीटा बीटा ये नहीं चल पाता, तो हमें इसके अंदर जो चाहिए वो आपको अल्फा और बीटा चेन्स चाहिए।
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंजेस, ये चेंज हो जाता है ड्यूरिंग ऑक्सीजन अपटेक एंड रिलीज। अब ऑक्सीजन को आपको अपटेक करना है या ऑक्सीजन को रिलीज करना है, तो इसका शेप चेंज होना होता है, इसका शेप चेंज होना होता है। इसमें होता क्या है, व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज, हम पहला मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है, ये बीटा चेन रोटेट होती है। दिस बीटा चेन, दो बीटा चेन है हमारे पास, बीटा 1 चेन है एंड बीटा 2 चेन है। व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज, बीटा चेन रोटेट्स ऑन द अल्फा 1 एंड बीटा 1, एंड ये अल्फा 1 आप देख रहे हैं एंड बीटा 1, इसमें रोटेशन आएगी इसके अंदर, एंड बीटा 2 एंड अल्फा 2 एंड बीटा 1 कॉन्ट्रैक्ट, अल्फा 2 एंड बीटा 1। अब देखेंगे अभी जो सीक्वेंस नज़र आ रहा है, अल्फा 1 बीटा 1 का नज़र आ रहा है, यहाँ पे बीटा 2 और अल्फा 2 का सीक्वेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन को रिलीज होना होता है, जब रोटेशन इसके अंदर आ रही होती है, तो अल्फा 1 बीटा 1 ये रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर सेटिंग क्या हो जाएगी इसके अंदर, ये जो आपका अल्फा 2 है इसके साथ ये बीटा 1 यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर, अल्फा 2 के साथ ये बीटा 1 ये आ जाएगा, और बीटा 2 यहाँ चला जाएगा, रोटेशन पे चला जाएगा। दिस ऑल रोटेट्स। ये तो जैसे ये रोटेशन आएगी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाएगा इसके अंदर से। सो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। अभी हमें जो एक नॉर्मल सीक्वेंस नज़र आ रहा है, ये अल्फा 1 आपको नज़र आ रहा है, बीटा 1 नज़र आ रहा है, बीटा 2 नज़र आ रहा है एंड अल्फा 2 इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। जब ऑक्सीजन को रिलीज होना होता है, द बीटा चेन रोटेट्स ऑन द अल्फा 1 एंड बीटा 1, अल्फा 1 एंड बीटा 1 पे रोटेशन आ जाती है, एंड अल्फा 2 एंड बीटा 1, अल्फा 2 एंड ये अल्फा 2 के साथ बीटा 2 के बजाय अल्फा 1 यहाँ पर इस तरफ आ जाता है। दिस अलाउज द एंट्री ऑफ 2,3 BPG। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजन तो निकल गई यहाँ से, तो इट बिकम्स, ये मॉलिक्यूल फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये मॉलिक्यूल जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, तो ये इट बिकम्स इमीडिएटली डीऑक्सीजनेटेड। अब जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, इट कॉजेज अलाउइंग द एंट्री ऑफ 2,3 BPG, ये एंटर हो जाता है। दिस 2,3 BPG 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंटर हो जाएगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, और ये अल्फा 1 और ये बीटा 1 और बीटा 2 को ब्रिज कर लेगा, ये बीटा 1 और बीटा 2 को ब्रिज कर लेगा, ताकि ये बॉन्डिंग पोजीशन के अंदर, विच कॉजेज अ लोअर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एंड इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि जैसे इसके अंदर रोटेशन आती है, जैसे इसके अंदर रोटेशन आती है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है, तो देर इज लोअर 2,3 BPG। मैंने बताया कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 2,3 BPG का। तो ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज हो जाती है, तो अल्फा 1 और बीटा 1 और बीटा 2 को ब्रिज करने के लिए दिस 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आ जाता है और वो उसको ब्रिज कर लेता है। Now the iron, the pharmacokinetics of the iron. Iron, it is an essential element of the body. ये हमें इसके मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें मिलेगा। इसके अंदर ये लिवर, फिश, ड्राई फ्रूट्स, स्पिनच, बनाना एक्सेट्रा। अब इसे फार्माकोकाइनेटिक्स हम इसके अंदर जब देखेंगे, आयरन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स नेसेसरी फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। जैसे कि इसमें साइटोक्रोम आ जाते हैं या कैटालिसिस इसके अंदर आ जाते हैं। एडल्ट मेल हैव अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम ऑफ आयरन। एडल्ट मेल इसके अंदर आपको 4 ग्राम ऑफ आयरन आपको मिलेगा इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली इन द ह्यूमंस, स्पेशली इन द मेल्स। फीमेल में कंटेंट हमेशा कम रहता है इसके अंदर से। डाइटरी आयरन एग्जिस्ट इन फेरिक फॉर्म। डाइटरी आयरन आपको फेरिक फॉर्म के अंदर मिलेगा, विच इज़ रिड्यूस टू फेरस, जो फेरस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फेरिक को फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो फेरस आपको डाइटरी आयरन फेरिक फॉर्म के अंदर इट इज़ रिड्यूस टू फेरस आयन इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आयरन इज एब्जॉर्ब इन ड्यूडेनम एंड अपर ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम और अपर ड्यूडेनम के अंदर आपको इसकी एब्जॉर्प्शन मिलेगी। इनकी एब्जॉर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन एपोफेरेटिन। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है एपोफेरेटिन, वो इसकी एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है इन इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स। इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर ये इसको
हम इसको फार्माकोकाइनेटिक्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डाइटरी आयरन एग्जिस्ट इन फेरिक फॉर्म विच इज रिलीज टू फेरस फॉर्म। फेरस आयरन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एसिड इन द स्टमक। आयरन एब्जॉर्ब इन ड्यूजनम एंड अपर जिजेनम। इट्स एब्जॉर्प्शन इज इसकी एब्जॉर्प्शन रेगुलेट होती है बाय अ प्रोटीन जिसको हम एपोफेरेटिन कहते हैं इन द इंटरस्टीडियल म्यूकोजल सेल्स। फेरस आयन is oxidized to mucosal cells to ferric ion and then combines with apoferritin to form ferritin. From ferritin iron is very slowly released. बहुत स्लो रिलीज होता है तो आयरन स्टोर हो जाता है. So iron as ferritin will be in the mucosal cell for a long time. ये फेरेटिन की फॉर्म के अंदर काफ़ी लंबे अरसे तक इसमें स्टोर रहता है. Ferrous ion in plasma is oxidized again to form ferric ion. प्लाज्मा के अंदर ये आने के बाद ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है. This ferric ion gets incorporated into transferrin. ये transferrin, this is the transport protein. This is taken up by रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम सेल्स है तो उसमें चला जाएगा, ये वहाँ से लीवर में हो जाएगा एक्सेट्रा और वहाँ पर जाके ये स्टोर हो जाएगा इसके अंदर. आयरन के एक्सक्रीशन, ये हम सारा इसको देख लेते हैं कि आयरन की जो एक्सक्रीशन है ये शेडिंग ऑफ द जीआई म्यूकोसल सेल्स है. ये स्किन की डीस्क्वामेशन हो रही है, कुछ इसकी कंसंट्रेशन बाइल के थ्रू भी निकल जाती है इसके अंदर और कुछ ये यूरिन से भी इसके अंदर निकल जाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, इसमें एब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड बाय एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, एस्कॉर्बिक एसिड, सिस्टीन फॉर एक्सेट्रा विच रिड्यूस फेरिक टू फेरस फॉर्म. आयरन की अगर स्टोर्स अगर कम है, आयरन का अगर आपको क्वांटिटी कम है तो इसमें फिर एब्जॉर्प्शन आयरन की ज़्यादा हो जाएगी. आयरन की अगर डेफिशिएंसी है, आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसको फुल करने के लिए और कमी को पूरा करने के लिए इसकी एब्जॉर्प्शन आपकी इंक्रीज हो जाएगी इसके अंदर. एंड सेकेंडली उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो कुछ चीज़ें इनहिबिट कर देती हैं. आयरन एब्जॉर्प्शन की जो इनहिबिशन आ जाती है वो इसके अंदर ये आपका फॉस्फेट्स आ जाते हैं, ऑक्सीलेट्स आ जाते हैं, फैटेट्स आ जाते हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को जो ये इनहिबिट कर देते हैं, इसकी इनहिबिशन इसके अंदर कर देते हैं. अगर हम आयरन के साथ मिल्क ले लें या एंटासिड्स ले लें एसिडिटी के लिए, या टेट्रासाइक्लिक ड्रग है वो अगर ले लें तो ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस कर देती है. तो ये फैक्टर्स जो हैं जो आयरन की इसकी एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, आयरन जो है ये खाली पेट में, एम्प्टी स्टमक में आयरन एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन ये एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर, ये अच्छी रहती है इसके अंदर. फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट जी मैं इसे देखना चाह रहा था. ये फेरस सल्फेट, दिस इज फेरस सल्फेट, ये ओरल प्रिपरेशन, ये हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देंगे हम इसके अंदर. 200 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे इसकी रिक्वायर्ड है. तो फेरस सल्फेट 200 मिलीग्राम के अंदर 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है. तो इनिशियली हम इसकी TDS दिन में 3 मरतबा 200 मिलीग्राम शुरू कर देते हैं आफ्टर मील्स, और इसको हम तक ड्यूरेशन जो है इसका 4 to 8 वीक्स है. 4 to 8 वीक्स तक हम फेरस सल्फेट हम इसको देते हैं. इसमें जो एक्सपेक्टेड जो राइज है हीमोग्लोबिन का वो 0.7 से लेके 1 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक एक्सपेक्टेड होता है. तो फिर मैंने जैसे बताया था कि अगर ये टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, ये 0.7 से 1 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक, तो हम थोड़ा दिन देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसको पेरेंटल, हम उसको फिर IV के ऊपर हम IV इसके ऊपर ले जाते हैं इसके ऊपर. फिर हम उसको इंट्रावीनस हम शुरू करते हैं. डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि आयरन टेक्सटेन और सॉर्बिटॉल क्या इसके अंदर आ रहा है, ये हम कर रिपीटेशन में आगे. तो अगर ओवर डोजेज हो गई है तो जनरल बेसिस के अंदर हम इसका एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और इसका स्पेसिफिक फिर हम बच्चों में ज़्यादा कॉमन है
और डिफ्रॉक्सामिन इसका हम एंटीडोट हम इसके अंदर दे रहे होते हैं इसके अंदर। मैच्योरेशन फैक्टर इसमें आ रहे हैं हमारे शुरू में पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को डिस्कस करेंगे। अच्छा, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आपको पता है कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए हमें ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड, विटामिन B12। अच्छा, इसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उसमें नॉन बी कॉम्प्लेक्स में हम विटामिन सी ले लेते हैं, और एनर्जी रिलीज के लिए B1 जिसको थायमीन कहते हैं, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B7 बायोटिन एंड B5 पेंटोथेनिक एसिड है। इस वक्त इसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसमें फिर हम हीमेटोपोएटिक जो ले रहे होते हैं उसमें फॉलिक एसिड और कोपोलामाइन, मिथाइल कोपोलामाइन ये आ जाता है, B12 विच इज नोन एज B12। ये बी कॉम्प्लेक्स जब वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स आ गया, उसमें विटामिन सी आ गया, फिर एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं B1 B2 B3 B7 B5। जो हीमेटोपोएटिक इसके अंदर जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आ रहे हैं उसमें फॉलिक एसिड और B12 आ जाता है, इसमें फॉलिक एसिड और B12 इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, और अदर्स में फिर हम B6 पायरिडॉक्सिन जिसको कहते हैं वो इसके अंदर ले लेते हैं। B12 इज रिक्वायर्ड इन ह्यूमंस, इसमें दो वजह से हमें B12 चाहिए होता है ह्यूमंस के अंदर, फॉर टू एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसमें दो एंजाइमेटिक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से B12 हमें रिक्वायर्ड होता है। नंबर 1 इज द रीमिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन। नंबर 1 रिएक्शन है जिसकी वजह से हमें B12 रिक्वायर्ड होता है। नंबर 1 रिएक्शन इज रीमिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन। नंबर 2 आइसोमेराइजेशन ऑफ मिथाइल मैनोनाइल को ए टू सक्सिनाइल को। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 रिएक्शन, विटामिन B12 is required in human for two enzymatic reactions: remethylation of homocysteine to methionine, and number 2 is isomerization of methyl manonyl CoA to succinyl CoA। ये दो हमें इसके अंदर रिएक्शंस की वजह से हमें रिक्वायर्ड होता है। अगर B12 डेफिशिएंट है, व्हेन B12 डेफिशिएंट, तो अनयूजुअल ब्रांच फैटी एसिड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल मेम्ब्रेन, और फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल मेम्ब्रेन के अंदर, विच लीड्स टू न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। B12 इज अ कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया। B12 जो है ये कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड है, दिस इज अ कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया। अब इसके अंदर जो आपको इसकी जो अकरेंस मिलेगी वो मीट, लिवर, एग, फिश एक्सेट्रा है, ये इसके अंदर आपको साथ साथ मिलेगी इसके अंदर। इट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, हम कह सकते हैं कि ये एनिमल ओरिजिन है। इट्स B12 रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हेमोपोइसिस विद माइलिन। नर्व के अंदर माइलिन शीट होती है, उसके लिए हम देख रहे हैं ये आपको ये रिक्वायर्ड होगा, इसका कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड है इसके अंदर। अच्छा, मेटाबॉलिक फंक्शन मैं ऊपर आपको बता भी चुका हूँ कि इट एक्ट्स एज ए को एंजाइम, ये एक्ट्स एज ए कोएंजाइम फॉर्म्स आर, इसकी जो कोएंजाइम की जो फॉर्म्स हैं वो मिथाइल कोबैलामीन है, विच इज मिथाइल कोबैलामीन, इसी कोएंजाइम की फॉर्म है मिथाइल कोबैलामीन, कोएंजाइम फॉर्म आर मिथाइल कोबैलामीन। एंड सेकंड इज डीऑक्सी एडेनोसाइल कोबैलामीन, दिस इज डीऑक्सी एडेनोसाइल कोबैलामीन विच इज आल्सो नोन एज DAB12। मिथाइल कोबैलामीन, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मिथाइल कोबैलामीन इज नेसेसरी फॉर कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन। मिथाइल कोबैलामीन ऊपर मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि टू एंजाइमेटिक रिएक्शन से आ रहे होते हैं, तो उसमें एक मिथाइल कोबैलामीन रिक्वायर्ड होता है, इज नेसेसरी फॉर कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन। एंड सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मैनोनाइल CoA टू सक्सिनाइल CoA, this DAB is required, this DAB, deoxyadenosine cobalamin is required। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें इसमें चाहिए होते हैं इसके अंदर। अब हमें इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस करनी है B12 की। इंजेस्टेड B12 कॉम्प्लेक्सेस विद इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंजेस्टेड आपका जो विटामिन B12 है, ये इंजेस्टेड B12 complexes with intrinsic factor in the stomach. Intrinsic factor stimulated by
दिस इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं। ये B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कॉम्प्लेक्स है, दिस B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स, दिस B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स रीचेस टर्मिनल इलियम, ये टर्मिनल इलियम में रीच कर जाता है, वेयर इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये टर्मिनल इलियम में स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, एंड B12 गेट एब्सॉर्ब इनटू ब्लड, और वहाँ से ये B12 ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। इन ब्लड में B12 बाउंड टू ट्रांसकोपोलामिन 2, ब्लड के अंदर ये ट्रांसकोपोलामिन 2 के साथ ये बाउंड कर जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, ये बहुत सारे सेल्स के अंदर ये निकल जाता है, ये वहाँ जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है इसके अंदर। अच्छा, विटामिन B12 अगर ज़्यादा हो जाए तो ये लिवर में स्टोर हो जाता है, विटामिन B12 इट इज स्टोर्ड इन द लिवर। विटामिन B12 की जो एक्सक्रीशन है वो बाइल के थ्रू होती है, एंड इट अंडरगोज एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ये एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर ये चला जाता है इसके अंदर। विटामिन B12 की जो मैनिफेस्टेशन और आपको हमें जो मिल रही हैं वो हेमेटोपोइटिक मिल सकती है, जिसमें आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको मिलेगा, पलर ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन आपको इतना मिलेगी। इस मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं कि डाइटरी डेफिशिएंसी इसके अंदर आई है, ये प्रेजेंट किस तरह कर रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसके अंदर आपको मिल रहा है। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल इसमें ये हेमेटोपोइटिक एक फैक्टर आ गया, न्यूरोलॉजिकल नर्व्स के हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड, डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आपको मिलेगा, कंबाइंड डीजेनरेशन है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन इसके अंदर आपको मिल रही है। पैरेस्थीसिया आपको मिलेगा इसके अंदर, डिफरेंट पैरेस्थीसिया की प्रेजेंट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको हाथों पैरों में जो सनसनाहट हो रही होती है, नमनेस आ रही होती है, ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप की नीचे पैरों में फीट्स के अंदर या उसमें आपको कन्फ्यूजन इसके अंदर आपको B12 की डेफिशिएंसी में मिलेगा, हेलुसिनेशन एंड साइकोसिस, ये इसकी मैनिफेस्टेशन है इसके अंदर। एंड अलॉन्ग विथ इसमें ग्लोसाइटस आपको मिलेगा, ग्लोसाइटस मिलेगा, एंगुलर एस्टोमेटिक जो माउथ है, माउथ का जो एंकल है लेफ्ट राइट के ऊपर माउंगर, इसमें कभी कुछ क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो पर्डिश विच इज़ नोन एज पर्डिश, इसमें क्लासिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट करता है ये आपका विटामिन B12 का। एंड देयर इज एट्रोफी ऑफ टंग एंड टीवी चैनल, देयर इज एट्रोफी ऑफ द टंग एंड मेमोरी। तो मैनिफेस्टेशन इसकी हमें हेमेटोपोइटिक मिल रही है, न्यूरोलॉजिकल मिल रही है, और ग्लोसाइटस मिल रहा है, एट्रोफी ऑफ टंग एंड वेजाइनल डिसीज के अंदर आपको मिल रही है। आयरन जिस तरह हमने डिस्कस करा था, इसमें ओवरऑल पैरेंटल में हमने इसको डिस्कस कर लिया था, तो इसमें भी आप देख लें कि इसमें जो B12 की जो प्रिपरेशंस आपको नज़र आ रही है वो आपको साइनोकोबैलामिन नज़र आ रही है। साइनोकोबैलामिन ये आप ओरल भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी कर सकते हैं, और सबकुटेनियस भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये आप हम यूज़ करते हैं जिस कंडीशन हो रहा है पर्निशियस एनीमिया, मैंने इनिशियल लेक्चर के शुरू में बताया था, ये कुछ नॉर्मलिटी आ गई पर्निशियस एनीमिया, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सी कोबैलामिन आपको नज़र आ रहा है, ये इंट्रामस्कुलर हम पर्निशियस एनीमिया में हम दे सकते हैं इसके अंदर। एंड थर्ड वन इज़ मिथाइल कोबैलामिन, ये ओरल दे सकते हैं। तो इसको जो B12 की प्रिपरेशन है हमें ये पेरेंटल भी इसके अंदर नज़र आ रही है, इंट्रामस्कुलर आपको नज़र आ रही है, और इसमें आपको ओरल भी इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। यूजेस में पर्निशियस एनीमिया it is due to autoimmune destruction of the gastric parietal cells that synthesize intrinsic factor। जो इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने भी आपको बताया था कि ऑटोइम्यून जेनेटिकली इसके अंदर एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी, तो गैस्ट्रिक पैरेटल सेल जो है वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इंटरमस्कुलर डोज जो है B12 की वो 100 माइक्रोग्राम पर डे है फॉर 1 वीक। इसकी जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको 100 माइक्रोग्राम पर डे फॉर 1 वीक। उसके बाद आप उसको हफ्ते में एक मरतबा हम देते हैं, वंस इन ए वीक फॉर 1 मंथ। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इन पर्निशियस एनीमिया हम इंट्रामस्कुलर B12 दे रहे होते हैं 100 माइक्रोग्राम पर डे फॉर फर्स्ट वीक। ये हम पहले हफ्ते में डेली लगा रहे होते हैं 7 डेज के लिए, उसके बाद हम हफ्ते में एक मरतबा इसको कर देते हैं इसको। दिस फॉलिक एसिड, एंड अगर हम इसको B12 के साथ फॉलिक एसिड यूज़ करना चाह रहे हैं
B12 डेफिशिएंट हो तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इसका कॉम्प्लेक्स फॉलिक एसिड विथ B12 में करेक्ट दी मैकुलोब्लास्टिक एनीमिया। ये मैकुलोब्लास्टिक एनीमिया को करेक्ट कर देगा, बट विल एग्रीवेट दिस कॉम्बिनेशन B12 और फॉलिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो इट विल एग्रीवेट न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू diversion of small quantities of B12 present in the body to hemopoiesis। अच्छा, ओरल B12 हम डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ओरल जो B12 है, ओरल प्रिपरेशन, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। Now the folic acid. Folic acid, it is the combination of glutamic acid, para-amino-benzoic acid along with pyridine nucleus। इसकी अकरेंस जो हमें मिलेगी वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर है, लिवर के अंदर है, यीस्ट के अंदर है, किडनी, फ्रूट, इसमें हमें इसकी अकरेंस मिलेगी। इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, ये कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 50 to 100 माइक्रोग्राम है डेली रिक्वायरमेंट, लेकिन ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है इसकी, जो कि 500 to 800 माइक्रोग्राम पर डे के करीब आ जाती है इसके अंदर। ये इसकी पिक्चर है इसकी, जो कि इसकी कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है ग्लूटामिक एसिड। फार्माकोकाइनेटिक, जब हम फॉलिक एसिड की डिस्कस करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में इसके अंदर हम देख रहे हैं कि डाइट्री फॉलिक एसिड प्रेजेंट एज पॉलीग्लूटामेट्स। ये पॉलीग्लूटामेट्स के तौर पे आ रहा होता है डाइट्री, ये पॉलीग्लूटामेट्स के थ्रू आ रहा होता है, इस फॉर्म के अंदर आता है पॉलीग्लूटामेट्स। ये अनएब्जॉर्बेबल होते हैं, ये दीज पॉलीग्लूटामेट्स आर अनएब्जॉर्बेबल, सो इट क्लीव्स टू मोनोग्लूटामेट्स। ये मोनोग्लूटामेट में इसको कन्वर्ट करना होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फोलेट कॉन्जुगेस। फोलेट कॉन्जुगेस की वजह से, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि डाइट्री फॉलिक एसिड प्रेजेंट एज पॉलीग्लूटामेट्स, दिस पॉलीग्लूटामेट इज अनएब्जॉर्बेबल, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो इसको मोनोग्लूटामेट्स में कन्वर्ट होना होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फोलेट कॉन्जुगेस। ये फोलेट कॉन्जुगेस की वजह से कन्वर्ट हो जाता है। रीडली एब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूजिनम, इन द म्यूकोसा ऑफ द ड्यूजिनम इट इज रिड्यूस टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड देन गेट्स मिथाइलेटेड, and then gets methylated in blood. It is transported to various tissues as methyl tetrahydrofolate, ये methyl tetrahydrofolate in blood it is transported to various tissues as methyl tetrahydrofolate, MTHF, ये MTHF के तौर पे ये इसके अंदर आ जाता है इसके अंदर। This MTHF constant supply is maintained by food intake and enterohepatic cycling. Folate is stored in liver. Stores are exhausted in about 3 to 4 months. 3 से 4 महीने में ये exhaust हो जाता है। So folate deficiency appears in about 3 to 4 months. Folic acid itself is inactive. Its active form, tetrahydrofolate, is essential for the biosynthesis of amino acid, purines, pyrimidines, choline, DNA, all this DNA, all this. Folic acid is inactive. Its active form is tetrahydrofolate, is essential for the biosynthesis of this amino acid, purines, pyrimidines, choline, and DNA, and therefore in cell division. अब इसके जो डेफिशिएंसी के फॉलिक एसिड की, इसमें आपको जो कॉमन मिलेंगे इसके अंदर वो डाइट्री है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रही है, मे बी मेल एब्जॉर्प्शन और ट्रॉपिकल स्प्रू है, डिक्री आप देखेंगे डाइट्री है, डाइट्री इसके अंदर और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ट्रॉपिकल स्प्रू है, मेल एब्जॉर्प्शन इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। डिक्रीज स्टोरेज है, अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है किसी को या विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो भी विटामिन या आपका फॉलिक एसिड डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर डिक्रीज यूटिलाइजेशन हो रही, कोई ड्रग्स के ऊपर है, फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन के ऊपर है, कोई फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन के ऊपर है, तो डिक्रीज यूटिलाइजेशन, फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन अगर कोई ले रहा है तो उसमें फॉलिक एसिड आपकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी इसके अंदर।
इंक्रीज डिमांड अगर आ रही है, अगर फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और इनटेक कम है, तो जैसे कि इंक्रीज डिमांड प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, या हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया के कॉजेज हम पीछे देख चुके थे आरपीसी के अंदर, वो आप अब इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये सारा इंटर रिलेटेड है, आयरन है, B12 है, या फॉलिक एसिड इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ड्रग इंड्यूस कुछ अगर आप ड्रग ले रहे हैं, एंटीफोलेट्स ले रहे हैं, या मिथोट्रिक्सेट ले रहे हैं, ट्राइमेथोपिम कर रहे हैं, तो ये विटामिन इसकी फॉलिक एसिड की ये डेफिशिएंसी कॉज कर देंगे, ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कॉज कर देंगे। इसकी जो आपको मैनिफेस्टेशंस मिल रही हैं कि आपको पता कैसे चलेगा जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंट हो गया, तो इसमें आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको नज़र आएगा, इसके अंदर सीबीसी इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसमें ग्लोसाइटिस आपको नज़र आएगा, डायरिया अनएक्सप्लेन्ड आपको डायरिया नज़र आएगा, और वेट लॉस आपको नज़र आएगा। इसमें वेट लॉस आपको साथ साथ नजर आएगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें प्रिपरेशन में ओरल टैबलेट भी आती है इसके अंदर, आईवी में हम इसका कॉम्बिनेशन भी आते हैं फॉलिक एसिड के B12 के। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक फोलेनिक एसिड होता है विच इज़ नोन एज कैल्शियम ल्यूकोवोरिन। फोलेनिक एसिड विच इज़ कैल्शियम ल्यूकोवोरिन इज़ यूज टू ट्रीट मिथोट्रिक्सेट। अभी पीछे ड्रग का नाम आया था मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, दिस मिथोट्रिक्सेट अगर मिथोट्रिक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाए, देयर इज टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट, ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, तो उसमें हम फोलेनिक एसिड विच इज़ कैल्शियम ल्यूकोवोरिन हम इसमें यूज़ करते हैं, और दिस फोलेनिक एसिड हम मिथेनॉल पॉइजनिंग में भी हम उसको ऐसे एंटीडोट के तौर पर लेते हैं इसके अंदर। सो अब हम इसको कह सकते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं फॉलिक एसिड के। फॉलिक एसिड इट इज़ यूज इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें ओरल जो डोज है वो हमारी तकरीबन 1 to 5 मिलीग्राम पर डे फॉर 3 to 4 मंथ्स। और प्रेगनेंसी में जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई लेडी कंसीव करती हैं, तो सबसे पहले हम आयरन और फॉलिक एसिड उनको डे 1 से उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो प्रेगनेंसी में इसकी 0.5 मिलीग्राम पर डे है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, टू अवॉइड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम इनिशियली डे 1 से फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए प्रेग्नेंट लेडी को हम 0.5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसको हम शुरू करवा देते हैं। इसके एडवर्स रिएक्शन में हमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मिल सकते हैं फॉलिक एसिड के, वो किसी को प्रॉब्लम कर सकते हैं इसके अंदर। एथोपोटिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, एथोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट। एथोपोइसिस से पहले मैं एथोपोटिन के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूँगा कि एथोपोटिन ये किडनी से और कहाँ से ये है क्या। एथोपोटिन है क्या चीज़? इट इज़ अ हार्मोन विच कंट्रोल्स एरिथ्रोपोइसिस। ये हार्मोन है, ये एरिथ्रोपोइसिस को कंट्रोल कर रहा होता है। द जीन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे इस पे जीन इसके ऊपर होती है, एंड कोड्स फॉर ग्लाइकोसाइलेटेड पॉलीपेप्टाइड्स। ये हैवीली कोड पॉलीपेप्टाइड्स के होते हैं, उसको ये कोड कर दीजिए। तो एरिथ्रोपोइटिन इट्स अ हार्मोन कंट्रोल एरिथ्रोपोइसिस, और इसकी जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 7 पे होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के करीब, उससे ज़्यादा होता है। एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस इन द पेरीट्यूबरल सेल्स ऑफ द किडनी। ये किडनी के जो पेरीट्यूबरल सेल्स हैं, ये 90% इसमें होता है, 90% ये एरिथ्रोपोइटिन किडनी में पड़ता है। लेकिन इसके अलावा 10% ये लिवर से भी बनता है। ये लिवर के सेल्स भी हैं, इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एरिथ्रोपोइटिन 10%। 90% किडनी बना रही होती है, 90% किडनी इसको प्रोड्यूस कर रही होती है एरिथ्रोपोइटिन को, और 10% ये लिवर के थ्रू भी आ रहा होता है इसके अंदर। इट्स प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड मेनली बाय टिश्यू ऑक्सीजन टेंशन। नाउ कम टू द पॉइंट, जो शुरू में मैंने आपको लेक्चर दिया था कि हम काफ़ी डिटेल में चले गए थे उसको कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल। तो अब आप उसको कोरिलेट कर लेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस जो हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन इट्स अ हार्मोन, क्रोमोसोम नंबर 7 पे इसके जीन आपको लोकेट कर रही है, मॉलिक्यूलर वेट 30,000 है। ये किडनी बना रही है 90%, 10% लिवर इसको प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इट्स प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय टिश्यू ऑक्सीजन टेंशन। ये अब आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ हाइपोक्सिया, इफ देयर इज डिक्रीज कंसिडर हाइपोक्सिया ड्यू टू एनीमिया, एनीमिया की वजह से अगर हाइपोक्सिया हो रहा है, या कार्डियक डिजीज़ की वजह से हो रहा है, या पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से हो रहा है, तो ये रेगुलेट करना शुरू कर देगा। इफ देयर इज किसी भी रीज़न की वजह से ऑक्सीजन की टेंशन अगर कम हो रही है,
तो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एरिथ्रोपोइसिस कैसे शुरू हो जाएगा? एरिथ्रोपोइटिन की वजह से शुरू हो जाएगा। वो क्यों शुरू हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर 7 की वजह से। एरिथ्रोपोइटिन जीन is one of a number of genes that is regulated by hypoxic sensor pathway. hypoxic जैसे ऑक्सीजन की टेंशन कम होगी तो देयर इज hypoxic sensor pathway होता है। Each erythropoietin gene has hypoxic response element. Minded, एक hypoxic response element होता है which is necessary for the induction of transcription of gene in the hypoxic cell. वो रेस्पॉन्स करेगा कि जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है वो उसको फील करेगा और फिर वो सिग्नल देगा किडनी से, फिर वो किडनी से ये आपका प्रोसेस शुरू होगा एरिथ्रोपोइसिस का। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया कि हाइपॉक्सिक रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ साथ हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होता है विच इज़ नोन एज HIF, हाइपॉक्सिया इंड्यूस फैक्टर। इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो चीज़ें मिलकर विच बाइंड्स टू द हाइपॉक्सिक रेस्पॉन्स एलिमेंट, दोनों मिल जाते हैं। ये आपका हाइपॉक्सिक रेस्पॉन्स एलिमेंट एंड HIF, हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, ये दोनों मिल जाते हैं and acts as a master regulator of several genes that responsive to hypoxia. ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो रही, मैंने आपको बताया कि ये एनीमिया की खून की कमी की वजह से हो सकती है, मे बी कार्डिक डिजीज़ या पल्मोनरी डिजीज़ COPD। तो एरिथ्रोपोइसिस का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। वो क्यों एक्टिवेट हो जाता है? ये दो फैक्टर्स की वजह से एक्टिवेट हो जाता है। एक तो हाइपॉक्सिक रेस्पॉन्स एलिमेंट एंड नंबर 2 इज़ हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। तो ये इसको रेगुलेट कर देते हैं और उसकी वजह से ये एरिथ्रोपोइसिस का आपका जो मैकेनिज्म है ये शुरू हो जाता है। दिस एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स एन इंक्रीज इन दी प्रोपोर्शन ऑफ बोन मैरो प्रिकर्सर सेल्स कमिटेड टू एरिथ्रोपोइसिस। और ये कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट है स्टिमुलेटेड टू प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट। अब हम ये दो लफ्ज़ को हम क्लासीफाई भी कर लेंगे, उसको जस्टिफाई भी कर लेंगे कि जो एक स्टेम सेल था वो एरिथ्रोसाइट भी कन्वर्ट हो सकता है, वो प्लेटलेट भी बन सकता है, वो P सेल, T सेल, वट एवर। शुरू में हमने इसको देखा था कि वो उसका फेट जो है वो 8 चीज़ों में इसको एक सिंगल सेल को कन्वर्ट कर दिया, जो उसमें मल्टी स्टेट ट्रांजिशन के थ्रू। इंक्रीज ये ज़्यादा भी हो सकता है एरिथ्रोपोइसिस का मैकेनिज्म। इंक्रीज इन अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इज ऑल्सो सीन इन पेशेंट्स विद रीनल कोरोनिक रीनल पेशेंट के पेशेंट हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। कंडीशन विच इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया इसको अंदर हम कहते हैं। तो ये किडनी के अलावा ये लिवर भी आपको बना रहा है, लिवर भी आपको बना के इसके अंदर दे रहा है। रिडक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ अंडरलाइंग एनीमिया ऑफ रीनल फेलियर, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। क्रोमोसोम नंबर 7 आपको बता दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस, हाइपॉक्सिक रेस्पॉन्स एलिमेंट हमने इसके बैकग्राउंड में डिस्कस कर लिया है, और HIF हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर कर लिया। ये मिलकर इसको मास्टर रेगुलेटर, इसको रेगुलेट कर देते हैं एरिथ्रोपोइसिस के मैकेनिज्म को। सो इट प्रोडक्शन ऑफ RBC इंक्रीज रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो। अब ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग फैक्टर? ये एनीमिया, रीनल फेलियर के साथ या कार्डियक डिजीज किसी वजह से भी इसके अंदर, कैंसर कीमोथेरेपी में, HIV पेशेंट्स के अंदर और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर इसके अंदर ले रहे होते हैं। जो ड्रग के नाम है एपोपोइटिन अल्फा है, डार्बापोइटिन अल्फा है एंड मिथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोएपोटिन बीटा। ये कुछ ड्रग्स हैं जो हम इन पेशेंट्स के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू इनिशिएट एरिथ्रोपोइसिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द लेक्चर।